اس کے اس نجات بخشتام کو اپنی زندگی میں مانگ لو. آج جو آپ کو پکارتا ہے صلیب پر، اس کا لہو آج بھی آپ کو پکارتا ہے، اس کا کفارہ آج بھی آپ کو پکارتا ہے. Oh, thank you, Jesus. آئے آج اس کوڑے کھانے کی قدرت کو محسوس کرو. وہ آپ کے لیے میرے لیے صلیب کو وہ اٹھا کر چل رہا ہے تاکہ میں اور آپ بچائے جائیں. کوئی نہ اسے ریپیٹ کریں گے پھر سے مل کر. وہ آپ کے لیے سولی کو اٹھائے وہ چل رہا، وہ اس ٹائم کے دوران وہ صلیب کو اٹھائے چل رہا تھا. اسے صلیب سے دی گئی، اس نے کلمات کو دہرا دیا تاکہ ہم رہ سکے، ہم جی سکے، ہم ہمیشہ کی زندگی کو پا سکے. وہ آپ کے لیے میرے لیے صلیب کو اٹھا کر وہ چلتا ہے. وہ میرے لیے آپ کے لیے کانٹوں کا تاج پہنتا ہے. دہرائیں گے اسے، جو گا سکتے ہیں وہ گائیں گے. کوئی نہ اپنے آپ کو تیار کرو اس کے کلام کے لیے، اس کے کلام کے لیے. وہ جو مجھ سے آپ سے محبت کرتا ہے، وہ جو اپنی محبت کی خوبی کو ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگاری تھے تو کلام کہتا ہے کہ خداوند گناہگاروں کے واسطے ہوا. وہ میرے اور آپ کے لیے وہ سولی کو اٹھائے چل رہا، وہ سولی کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے چلتا تاکہ میرا اور آپ کا بوجھ جو کندھوں پر ہے وہ کم ہو جائے. آئے میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے اپنے دل کو کھولے گے. آئے بولے خداوند اے تیرا کلام میری زندگی میں سوکھنا پھیلے. اے خداوند آج میں آیا نہیں بلکہ آج میں تیرے روح کے وسیلہ سے اس جگہ پر لایا گیا. آئے تو مجھ سے بول، آئے تو مجھ سے کلام کر، آئے تو مجھ سے کلام کر. میں تیری آواز کو سننے کے لیے تیار ہوں. اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میرے لیے، تو میری صلیب کو اپنے کندھوں پر اٹھائے چلتا. اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں اس یسوع کے نام میں، آمین. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. کتنے لوگ آج خوش ہیں؟ ہاللیلویہ. لوگ بہت زیادہ، ہاتھ بہت کم ہے، مجھے سارے نظر آنے چاہیے. کتنے لوگ خوش ہیں؟ ہاللیلویہ. سب سے پہلے ہم یہ گڈ فرائیڈے کیوں مناتے ہیں؟ بتا سکتا آپ میں سے؟ یہ ہمارے لیے گڈ فرائیڈے اس لیے ہے کیونکہ خدا نے میرے اور آپ کے گناہوں کا بوجھ، میرے اور آپ کے دکھ خدا نے صلیب پر اٹھا لیا. آپ جانتے ہیں یہ لمحہ، ان لمحات کے اندر کیا چل رہا تھا؟ یہ جو لمحہ تھا یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے، جو یسوع ناصری کہلاتا ہے، اس کے لیے ایک دکھ بھرا لمحہ تھا. یسوع مسیح کے لیے ایک بہت، آپ دیکھیں کہ اتنی اذیت یسوع مسیح سہ رہے تھے. یسوع مسیح کے لیے ایک دکھ کا اور ایک بہت بڑے، علماء بیان کرتے ہیں بہت بڑے کیا تھا؟ دکھ کا سما تھا. لیکن یہ گڈ فرائیڈے کیوں ہوا؟ یسوع مسیح نے روح میں ہمیں یہ ایک اچھا دن دیا کہ یہ دن آپ کی اور میری نجات کا دن ہے. اس لیے یہ کیا ہے؟ گڈ فرائیڈے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آج جو مجھے ایک ٹاپک دیا گیا ہے
वो है अब आप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिनके पास खुदा का कलाम है, मैं चाहता हूं कि हम खड़े होकर इस वर्ष को पढ़ें। लूका 23 उसकी 26वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अब आप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। सब बोलेंगे आमीन। अब ये खड़े कराकर आपको पढ़ाने का मकसद ये था, आप यहूदी शरीयत को पढ़ें तो जब भी यहूदी उल्मा कलाम सुनाते तो जो लोग थे वो कलाम की इज्जत में खड़े हो जाया करते थे, ताकि कलाम को क्या मिले? इज्जत मिले। हालेलुया। आइए सब तशरीफ रखें। इससे पहले कि मैं आपके साथ 7वें कलमे को बयान करूं, मुझे आज इस जगह पर एज ए पास्टर भेजा गया कि वाइंड अप, क्लोज अप, जो कुछ भी वो सब मेरे पास है। तो मैं चाहता हूं कि जितने कलमे बयान किए गए, बहुत अच्छी बहनों ने, भाइयों ने एफर्ट की। मेरी ये दुआ है कि खुदा इन्हें इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। बाइबल को पढ़ो तो जब लिखा है कि ईद फसा, जिसको हमने रात को सेलिब्रेट किया, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ एक शख्स के पास जाओ और उससे जाकर कहो कि यीशु ने हमें भेजा है कि तू आज की जो आखिरी फसा अपने घर के अंदर क्या कर? तैयार कर। यानी रात का खाना जिसमें हम सब मिलकर बैठकर खाएंगे, तो उसको तैयार कर। तो लिखा है उस शख्स ने ऐसा ही किया। आप जानते वो शख्स जिसने उस खुराक को तैयार किया था, बाइबल के मुताबिक वो शख्स एक मालदार शख्स था। वो शख्स यीशु मसीह को अपना निजात देता मानने वाला शख्स था। बाइबल कहती है कि उस शख्स ने उस आखिरी फसा को तैयार किया। और लिखा कि जब यीशु मसीह ने उस आखिरी फसा को खाया तो वो अपने शागिर्दों के साथ, लिखा है कि वो बागे गतसमनी के अंदर गए। इससे पहले हम एक हवाला पढ़ेंगे, यूहन्ना 18वां उसकी पहली आयत, ताकि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैं उसको अच्छे तरीके से समझा सकूं। घबराने की बात नहीं, छेती वाइंड अप करते हैं। हालेलुया। मैं जानता हूं कि टाइम ज्यादा है तो हम जल्द कोशिश करेंगे कि इसे वाइंड अप करें। 18वें बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है, यीशु ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ कदरून के नाले के पार गया। वहां एक बाग था, उसमें वो और उसके शागिर्द दाखिल हो गए। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोती भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। सब बोलेंगे आमीन। बाइबल के मुताबिक ये जगह जहां पर यीशु मसीह ईद फसह के बाद उस जगह पर गए थे, कलाम के अंदर लिखा है अपने शागिर्दों के साथ कदरून के नाले के पार गया। वहां एक बाग था और बाइबल के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक वो बाग जो था वो बागे गतसमनी था। अब जो गतसमनी का मतलब है वो अब्रानी जुबान के अंदर है उस्बेक, जिसका मतलब है तेल का कोल्हू, यानी कि किसी चीज को उसके अंदर रखकर पीसना। आपने चक्की सबने देखी होगी, देखी ना चक्की, उसे पंजाबी जुबान में या उर्दू जुबान में कोल्हू कहते हैं, ताकि उसके अंदर पीसे और फिर क्या हो, हमें खुराक दे। गतसमनी का अब जो मतलब है वो है तेल का कोल्हू। यीशु मसीह ने उस जगह को चूज किया जिसका मतलब ही था कि पिसने वाला। अब आज मैं आपको बात यह समझाना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर इसलिए आए ताकि वो मुझे और आपको निजात दे सके। वो इसलिए आए ताकि मुझे और आपको हमारे गुनाहों से, वो गुनाह जो हम करते हैं, हमें उससे मुखलसी दे सके। यीशु मसीह ने उस जगह को चूज किया जिसका मतलब था तेल का कोल्हू, यानी कि पिसा जाना। शागिर्द भी इस बात को नहीं जानते थे कि यीशु मसीह का क्या मकसद है उस जगह पर जाने का। यीशु मसीह तमसीली जुबान के अंदर हमें यह समझाना चाहते हैं कि देखो, इसी तरह जिस तरह इसका मतलब है तेल का कोल्हू, इसी तरह मैं भी पिसा जाऊंगा और क्या निकलेगा? तेल निकलेगा। वो तेल लहू बनकर निकला।
लिखा कि वही लहू जो सलीब से बहा वो हमारी निजात बना। ये वो ऑयल है। आप इसे लूका 22वें बाब की 39वीं आयत के अंदर पढ़ेंगे। टाइम बहुत कम है, जिनके पास कॉपी पेंसिल है वो नोट करते जाएं। तो इसके अंदर लिखा है कि यीशु मसीह जैतून के पहाड़ के पास गए। किसके पास गए? जैतून के। आप जानते हैं दूसरे लफ्जों के अंदर इसे जैतून कहा गया। जैतून का मतलब आप सब जानते हैं, जैतून एक तेल है, कोई मतलब नहीं निकलता। इसका एक पौधा है जिसे क्रश किया जाता है, और ये जो जैतून है जब निकलता है इसे डॉक्टर्स यूज करते हैं। इसके लिए डॉक्टर्स मशवरा देते हैं अगर आपको कोई अंदरूनी चोट है तो आप इसे क्या करें? इस्तेमाल करें। यीशु मसीह मेरी और आपकी अंदरूनी और गहरी चोटें जो शैतान हमें देता है वो उनकी मरहम पट्टी करने के लिए इस दुनिया के अंदर आया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप आज दुखों में हो सकते हैं, आज आप तकलीफों में हो सकते हैं, आज आप बीमारियों में हो सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने लिखा है कि कांटों का ताज अपने सर पर पहन लिया। उस कांटों के ताज के पहनने का मतलब है ताकि वो मेरे और आपकी सर की दर्द को ले ले, ताकि वो मेरे और आपके डिप्रेशन को ले ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने कांटों का ताज इसलिए पहना, वो आपकी अंदरूनी चोट की जिसकी कोई मरहम पट्टी नहीं कर सकता। डॉक्टर्स भी कहते हैं चूल्हे पे जाओ, सेका दो तो सही हो जाएगा, ਇਹਦਾ इलाज ਸਾਡੇ कोल कोई नहीं। लेकिन यीशु मसीह कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने हमारी उस चोट की जो शैतान ने हमें अंदरूनी चोट दी, यीशु मसीह ने अपने लहू के वसीला से हमारे उन जख्मों को भर दिया। हालेलुया। मैं खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। यीशु मसीह ने मेरे और आपके जख्मों को भर दिया। आज हमें लगता है कि मैं बहुत गरीब हूं, हम डिप्रेशन के अंदर हैं, मेरे बच्चे चर्च नहीं जाते, हम डिप्रेशन के अंदर है, मेरा शोर खुदा को मानने वाला नहीं, हम डिप्रेशन के अंदर है, मेरा शोर नशा करता है, हम डिप्रेशन के अंदर है, मेरे बच्चे नशा करते हैं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, घर के अंदर लड़ाई है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो कांटों का ताज जो यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर अपने सर पर पहन लिया, वो मुझे और आपको डिप्रेशन से आजाद करने के लिए था। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह जो है उस पहाड़ी पर जाते हैं जिसका नाम है जैतून की पहाड़ी। और बाग कौन सा है? कौन सा बाग है? ऊंची आवाज में कौन सा बाग है? आवाज बहुत कम, फिर से कौन सा बाग है? हालेलुया, गतसमनी बाग। यीशु मसीह जो है वो गतसमनी बाग को यूज करते हैं, यानी कि तेल का खून यीशु मसीह को मारा जाए, यीशु मसीह को घायल किया जाए। हालेलुया। और लिखा है कि उसी गतसमनी बाग के अंदर क्या हुआ? सिपाही आ मौजूद हुए। सिपाहियों ने क्या किया? यीशु मसीह को पकड़ लिया, और लिखा है कि यीशु मसीह का शागिर्द जो बहुत ज्यादा फर्तीला था, जो बहुत ज्यादा जोशीला था, उसने लिखा अपनी तलवार को निकाला और उसने क्या किया? सिपाही का, रोमी सरदार की सिपाही का कान उड़ा दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह उस जगह पर भी शिफा की नदियों को जारी कर देते हैं। वो उस जगह पर भी, वो तेल के कोलू के अंदर भी वो शिफा की नदियों को जारी कर देते हैं। कलाम कहता है जब पतरस ने उस सिपाही का कान उड़ा दिया तो यीशु मसीह ने उसके कान पर हाथ रखा और उसका कान जल्द ही हो गया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? यीशु मसीह क्यों आए? ताकि वो पिसे जाए मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। आप जानते हैं मैंने आज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं सारी रात में सोया नहीं, तभी मेरा जो सर है वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पर आया तो दिल बहुत टूटा। मैं सारी रात बैठकर अपने शागिर्दों के साथ, 2-3 शागिर्द थे, हम प्रेयर में थे, मैं उनको सिखा भी रहा था, मैं खुद भी कर रहा था। तो मेरी कोशिश थी कि हम ज्यादा से ज्यादा इस दिन के मकसद को जान सकें। हम में से कितने लोग हैं जो इस दिन के मकसद को जानते हैं कि मकसद क्या था? हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। तो हम सबको जानने की जरूरत है। हम में से बहुत सारे ऐसे जो कम जानते हैं। तो लिखा है कि जो एक की रूह बचा लेगा आसमान थे तारियां दी मानत चमकेगा। तो मेरे लिए तो एक रूह भी मायने करती। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा जब सिपाही आए तो यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया? उनके हवाले कर दिया।
और जो सिपाही थे अब यीशु मसीह को कत्ल करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे। बहाने तो पहले बहुत ज्यादा थे, लेकिन कोई ठोस सबूत, कोई ठोस वजह उनके पास नहीं थी। अब जब यीशु मसीह को लेकर गए तो लिखा कि जैसे ही सुबह हुई तो उन्होंने सबसे पहले सरदार काहनों के पास खुदा की यीशु मसीह की क्या की? पेशी की। पहली पेशी जो यीशु मसीह की हुई वो सरदार काहन के पास हुई। उस वक्त जो रोमी हुकूमत के अंदर यानी कि जिला का जो आप कह ले MP MLA शायद होता है, इस तरह से होता है, उसके सामने पेशी की गई। ये शख्स गुनाहगार है, इसे सलीब दी जाए, इसे घायल किया जाए। सरदार काहन कहता कि मैं तो इसमें कुछ भी नहीं ऐसा पाता। उसने पिलातुस के पास यीशु मसीह को भेज दिया। अब जो केस था वो यीशु मसीह का पिलातुस के पास गया, और जब पिलातुस को पता चला कि ये तो नासरी है, उसकी बीवी को ख्वाब आया कि ये शख्स रास्तबाज है, उसने पिलातुस से कहा कि इसको छोड़ दे, ये शख्स रास्तबाज है। लिखा कि पिलातुस ने फिर यीशु मसीह को किसके पास भेजा? हेरोदिस के पास, उस वक्त का जो बादशाह था। अब पिलातुस और जो हेरोदिस हैं, इनकी आपस में गहरी लड़ाई थी। वो गहरी लड़ाई आप जानते हो क्या थी? वो लड़ाई जो थी, इनकी जो जुदाई थी, वो यीशु मसीह की पैदाइश पर हुई थी। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो लिखा है कि पूरब से सितारा देखकर क्या आए? मजूसी आए। मजूसी यीशु मसीह को सजदा करने के लिए आए। अब मजूसी हेरोदिस से जाकर मिले, और जब हेरोदिस ने देखा कि वो बादशाह जो पैदा हुआ ये ना हो कि कहीं कल को मेरी सल्तनत क्या करे? छीन ले। लिखा कि उसने गलीली सब छोटे बच्चों को क्या किया? कत्ल करवा दिया। और इस बात से पिलातुस जो था वो मुतमिन नहीं था, वो चाहता था कि बच्चों का कत्ल ना किया जाए। इस बात से इन दोनों के दरमियान क्या हुआ? झगड़ा हुआ। लिखा कि जब पिलातुस ने हेरोदिस के पास यीशु को भेजा तो इसकी स्कॉलर्स कहते हैं सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी, वो उस जुदाई को खत्म करना चाहते थे। हालेलुया! क्या आप समझ पा रहे इस बात को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? और लिखा कि जब यीशु मसीह हेरोदिस के पास गया, उसने यीशु मसीह को लान तान किया और फिर से क्या किया? पिलातुस के पास भेज दिया। इस तरह से उनके दरमियान क्या हुआ? मोहब्बत का इजहार हुआ। क्या हम एक दूसरे को लेकर चल रहे हैं? तो इस तरह से पिलातुस की और हेरोदिस की क्या हुई? फिर से दोस्ती हो गई। हालेलुया! यीशु मसीह का जो इस दुनिया में आने का मकसद था वो इस दुनिया के अंदर अमन को कायम करना है। यीशु मसीह का इस दुनिया के अंदर आने का जो मकसद है वो हमें उन गुनाहों से जो शैतान करवाता है, वो जुदाइयां, वो तफरीके जो इंसान आज अपने अंदर डालता है, यीशु मसीह का जो मकसद था वो इस जुदाई को खत्म करना था। हालेलुया! आप समझ पा रहे? पिलातुस की और हेरोदिस की फिर से क्या हो गई? मुलाकात हो गई। यीशु मसीह ने, बाइबल कहती कि हमें एक दर्स दिया, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत ने उनको फिर से मोहब्बत में बांध दिया। मैं एक स्कॉलर की बुक पढ़ रहा था तो उसमें बार बार स्कॉलर ही नाम आई जा रहा है, सॉरी स्कॉलर नहीं था, एक बुक पढ़ रहा था। एक मैं बुक पढ़ रहा था तो उसके अंदर नबिया ने, एक औरत थी, उसने कहा कि मोहब्बत ये नहीं कि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत ये है कि खुदा ने आपके साथ मोहब्बत की है। हालेलुया! भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि खुदा हमसे क्या करता है? मोहब्बत करता है। कलमे का मतलब है क्या भाई? रहनुमाई करेगा? रहना। कलमे का मतलब है रहना। यीशु मसीह ने मोहब्बत का कलमा क्या किया? अपने जुबान मुबारक से निकाला। इसका मतलब है रहना, मोहब्बत में रहना। हालेलुया! तो यीशु मसीह की सलीब जो है, यीशु मसीह का कुफारा जो है, वो हमें मोहब्बत के अंदर बांध देता। यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मेरी और आपकी रहाई, हमारी जुदाइयां, हमारे तफरीके यीशु मसीह ने खत्म कर दिए हैं। हालेलुया! आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आमीन। लिखा कि जब यीशु मसीह को लास्ट स्टेज पर है, लिखा कि जब यीशु मसीह को ले जाया गया, पेशी हो गई, सब कुछ हो गया, मारा जा रहा है, ये वो कलियों के अंदर से यीशु मसीह गुजर रहा है। लिखा कुछ लोग देखकर रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ लान तान कर रहे थे, कुछ कह रहे थे तू बड़ा नबी है, तू बड़ा बादशाह है, अपने आप को बचा। लिखा यीशु मसीह ने कहा अगर मैं चाहूं
बाप से दरख्वास्त करूं तो अभी इस जगह पर 12 तमन फरिश्ते क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ये खुदा की मोहब्बत है। 12 तमन फरिश्ते आ सकते हैं, लोग देख रहे हैं, लिखा के बरमला तमाशा यीशु मसीह का बनाया जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह सह रहा, वो इस दिन के अंदर सह रहा। आखिरी जो 3 कलमात हैं वो लिखा है कि तब अंधेरा हो चुका था, सूरज ने अपनी रोशनी क्या की, छोड़ दी। और छठे कलमे के अंदर यीशु मसीह, छठा कलमा था, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हालेलुया। तो लिखा छठे कलमे के अंदर यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लोग देख रहे, बड़ा हजूम, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। ये अज़ल से ये नबूवत थी कि यीशु मसीह एक शख्स के जरिया से इस दुनिया के अंदर नजात लेकर आएगा। अब लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो लिखा कि जब लेकर जा रहे थे मारते हुए, तो यीशु मसीह को एक पहाड़ी पर लेकर गए। अभी 5वें कलमे के अंदर शरून भाई ने बताया उस पहाड़ का जो नाम है वो है कोलकाता। क्या नाम है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मेरे पीछे पड़ा है, कोलकाता, कोलकाता, हालेलुया। इसका जो मतलब है, इसका कोलकाता का जो तर्जमा है उर्दू जुबान में, उसे कहते हैं खोपड़ी की जगह। कौन सी जगह, खोपड़ी की जगह। वो खोपड़ी ये वाली है। यहूदी शरीयत में, रोमी सल्तनत में, जब कोई शख्स गुनहगार होता तो उसे लानती मौत दी जाती। ज़नाकारी में पकड़ा गया शख्स, इस तरह से उनके खिलाफ चलने वाला, उनको इस तरह से ये सजा दी जाती थी। बागी होने वाला शख्स, उसे सलीब दी जाती थी। और ये जो सलीब का निशान है ये लानती लोगों के लिए था। और लिखा है कि यीशु मसीह को खोपड़ी की जगह पर लेकर गए, जहां पर पहले लोगों को क्या दी जाती थी, सलीब दी जाती थी। उस जगह पर बहुत सारी खोपड़ियां पड़ी हुई थी, बहुत सारे ढांचे थे जो उस जगह पर वैसे के वैसे गल सड़ चुके थे। हड्डियां तो दफन हो जाती है, लेकिन ये जो खोपड़ी है ये कुछ हिस्सा इसका ऊपर रह जाता है, तो इसलिए इसे बोला गया खोपड़ी की जगह। ये एक पहाड़ी थी जिसका लतीनी जबान के अंदर है कलवरिया। क्या मतलब है, कलवरिया। इस गुड फ्राइडे को हम उर्दू जबान के अंदर कहते हैं शामे कलवरी, हालेलुया। ये शामे कलवरी इसलिए है क्योंकि उसने मेरे लिए और आपके लिए लानती मौत को सहा, हालेलुया। समझ आ गई आप सबको। ये जो खोपड़ी की जगह पर इसलिए ले जाया गया क्योंकि इसका जो मतलब था वो था कलवरिया, शामे कलवरी। शामे कलवरी का जो मतलब है वो हमारी निजात, हालेलुया। तो ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसको शागिर्द भी नहीं समझ सके कि ये चल क्या रहा, ये हो क्या रहा। लिखा यीशु मसीह ने उन जगहों का पहले ही से इंतखाब किया था ताकि आने वाले वक्त में मैं और आप क्या करें, समझ सके कि मसीह का कुफारा जो है वो सच्चा है, हालेलुया। और लिखा है यीशु मसीह ने 7वें कलमे के अंदर चिल्लाकर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दुख, आपकी तकलीफें बड़ी नहीं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे तो वो आपके लिए, वो हर एक काम को जो आपके लिए डिफिकल्ट है वो आपके लिए शामे कलवरी बना देगा, हालेलुया। आपको जरूरत है कि आप वो काम जिसको इंसान इम्पॉसिबल कहता है, आपको मसीह की हजूरी में लाने की जरूरत है। आपको लगता है कि मैं गुनाह से नहीं छूट सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज आपको और मुझे जरूरत है कि हम अपनी रूह को, हम अपनी जान को, हम अपने बदन को मसीह के ताबिया कर दें, हालेलुया, हालेलुया। हमें जरूरत है कि हम अपनी जान को मसीह के ताबिया करें। आए मेरे अजीजों, आज आपके पास वक्त है। अगर आप गुनाह के अंदर हैं, अगर आप गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कहता तू अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दे, वो कहता तू अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दे, वो कहता मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं,
लिखा यीशु मसीह को उस खोपड़ी वाली जगह पर ले जाया गया, जिसका मतलब है शाम कलवरी, जिसका मतलब है कलवरिया। उसे ले जाया गया ताकि मैं और आप निजात पा सके। आए जो अपने गुनाहों में, जो डिप्रेशन का शिकार है अपने गुनाहों के बायस, आए जिनकी परेशानियों को लगता कि बहुत बड़ी है, वो आपकी परेशानियों को आज के दिन कर उस पर लेकर चल, ताकि मैं और आप निजात पा सके, मैं और आप रिहाई पा सके, मैं और आप मुखलसी पा सके। वो हमें मुखलसी देने के लिए आया। उसका कुफारा बाइबल कहती कि अज़ल से अबद तक उसकी पहले से पेशन गोई की गई थी कि खुदा अपने बेटे को भेजेगा जो मेरे और आपके गुनाहों का बोझ उठाएगा। अब आप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदा मेरा ईमान है कि जब मैंने जो कुछ मांगा बड़े ईमान से पा लिया। खुदा तेरा जलाल हमारी जिंदगी